ہم شریفی کلمات کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلا کلمہ جو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر فرمایا اس کو معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور یہ لوکا 23 باب اس کی 34 آیت میں یہ کلمہ درج ہے، اور یہ کلمہ ہے: اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ شدید ترین دکھ کی، اذیت اور درد کی حالت میں کہا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں یسوع المسیح نے دنیا کی فکر کی، جن کی نجات، جن کی بحالی، جن کے کفارے اور جن کی مقدسی کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ اس نے پہلا کام انہی کے لیے کیا، اور اس نے معافی کا یہ کلمہ ارشاد فرمایا۔ اس کلمے کو سیکھنے کے لیے میں دعوت دوں گا۔ یہ دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا کلمہ ہے، اور یہ نجات کسی ایسے شخص کی نہیں جس نے بڑے اچھے کام کیے، بہت راست باز یا بہت ہی خدا پرست انسان، دیندار شخص، بلکہ یہ نجات جو ہے ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی عمر بھر کوئی اچھا کام کیا، ڈاکے ڈالے، لیکن آخری وقت میں وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو جب قبول کرتا ہے تب اس کے لیے نجات اور خدا کی بادشاہی مہیا کر دی جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا: میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ لوکا 23 باب اس کی 43 آیت میں، اور میں درخواست کروں گا بہن سنجیدہ مدثر سے دعائیں اور اپنا پیش کریں۔ خداوند کے زندہ اور برکت نام کی طرف سے آپ کو سلام ہو۔ فلپی کلمات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا کلمہ جو مجھے یاد ہے وہ ہے: میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ عمومی طور پر اور حقیقتاً ہے بھی نجات کا کلمہ، اور یہ نجات کا کلمہ ڈاکو کی اس درخواست کا جواب ہے جو اس نے صلیب پر مسیح خداوند سے کی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ چاروں رسولوں نے اپنی اناجیل اربعہ میں مختلف مقامات پر مختلف حوالہ جات میں مسیح خداوند کی رسولیت کے منظر کو، اس کی تصویر کشی کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کو دہلی اور اس کے بائیں طرف 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی رسولیت یہ اچانک کھیل نہیں تھی، بلکہ یہ خداوند کے اس مقررہ پلان کا ایک حصہ بھی جو اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے تشکیل دیا۔ اور اس کی پیشن گوئی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں یسایہ 53 باب اور اس کی 12 آیت میں۔ وہاں لکھا ہے کہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اب مسیح خداوند کا خطا کاروں کے درمیان شمار کیا جانا بھی خداوند کے ایک پریپیڈ پلان کا ایک حصہ تھا، اور یہ اشد ضروری تھا کہ مسیح خداوند گناہ گاروں کے ساتھ شمار کیا جاتا، کیونکہ ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ وہ عادل ہے جو منصف ہے۔ اب جب بنی نوع انسان کے گناہوں کے باعث مسیح خداوند نے انسانی روح دے کر بھیجا تو وہ اس دنیا میں گناہ گاروں کے مشابہ ہو گیا۔ اس نے تمام ہماری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی، اور ہماری حاضر وہ گناہ بھی بننے کے بعد نہ آیا۔ تو جب خداوند نے تمام دنیا جہاں کا گناہ مسیح خداوند پر لاد دیا گیا اور وہ خود گناہ بن گیا، تو لازم تھا کہ اس کی سزا بھی گناہ گاروں جیسی ہی ہوئی تھی۔ اب مسیح خداوند کے دہنے اور بائیں طرف جن ڈاکوؤں کو سزا دی گئی تھی ان
इसका मतलब ये है कि उन गुनाहगारों को उनके गुनाह की सजा दी जानी थी, तो मसीह खुदावन जो हमारी खातिर गुनाह बना, तो उसको भी इसीलिए उसके लिए मसूलियत की मौत मुंतखब की गई। अब मसीह खुदावन पर जो मसीह खुदावन के साथ जो दो डाकुओं को सजा दी गई थी कि उन्हें भी सलीब दी जाए, उनके नुक्ता नज़र दो तरह के हैं। एक का नुक्ता नज़र जरा मनफी है, जो मसीह खुदावन को ठट्ठों में उड़ाता है, उसे ताने देता है, और दूसरे का नुक्ता नज़र मुस्बत है, जो कि इस बात का इकरार करता है, क्योंकि जब ये हम हवाला देखते हैं लूका की इंजील उसके 23 बाब और उसकी 39 आयत में, तो वहाँ ये लिखा है कि एक ने ताना देकर उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। अब जब हम ये देखते हैं मंजर, तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदावन पर कितनी भारी सलीब लादी गई थी। उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया, और कितना फासला तय करके इन हालात में, गर्मी और प्यास की शिद्दत में किस तरह से मसीह खुदावन ने जिस्मानी अज़ियत बर्दाश्त की। और फिर जब उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, तो बहुत ज़्यादा गम की और दुख की और जिस्मानी अज़ियत की हालत से वो गुजर रहा था। तो वो डाकू ये जानता था कि अगर हम अज़ियत से गुजर रहे हैं तो हम तो अपने किए का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी वो उसको ताना देकर कहता है कि तू तो खुदा का बेटा है, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। बेशक वो जिंदगी पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जिंदगी की पाने की ख्वाहिश जिस नुक्ता नज़र से वो पेश करता है वो मनफी है, क्योंकि वो इस बात का इकरार नहीं करता, बल्कि वो ताना देता है। वो दिल से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि खुदावन जो है वो ये कुदरत रखता है कि वो हमें बचा ले, बल्कि वो उसे कहता है कि तू ये रखता है कुदरत, तो तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा। अब जो दूसरा डाकू है उसका रवैया बहुत मुस्बत है। वो दिल से इस बात को यकीन रखता है और इस बात पर भी उसका यकीन है कि हमने जो भी पाया है हमने अपने कर्मों का अजर पाया है। तो उसका रवैया हम देखते हैं कि वो उसको झिड़क कर कहता है। पहला तो ये कि वो उसको झिड़क कर कहता है, तो दूसरा ये है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? तो ये बात कहने से ये जाहिर होता है कि वो इस बात पर यकीन रखता है कि खुदावन जो है वो मुनसिफ है। अगर हमें ये सजा मिली है तो हमारे कामों की वजह से, अगर मसीह खुदावन को ये सजा मिली है तो उसके कामों की वजह से नहीं मिली, बल्कि हमारे गुनाहों की खातिर वो उसमें किया जा रहा है ताकि हम निजात पाएं। और वो खुदा पर यकीन रखता था। वो जानता था कि अगर मसीह खुदावन इन हालात से गुजर रहा है तो यकीनी तौर पर खुदावन अपने खालिक होने की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करेगा, और वो अपने प्लान के मुताबिक कहीं ना कहीं मसीह खुदावन के साथ साथ अगर मैं भी ये यकीन रखूँगा तो मुझे भी हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो फिर दूसरी बात है, वो कहता है हमारी सज़ा वाजिबी है, मतलब इस बात का इकरार कर रहा है कि हम गुनाहगार हैं। तीसरी बात वो जो कह रहा है वो ये कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया, तो ये इस बात की दलालत है कि मसीह खुदावन बेगुनाह है। और फिर उसने कहा कि ए यीशु, उसने ये बड़ी इल्तिजा की हालत में कहा है कि ए यीशु, इसका मतलब है कि वो दिल से इस बात पर यकीन रखता था कि खुदावन मेरा निजात दहिंदा है। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो फिर उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, तो उसने इस बात का इकरार किया कि खुदावन मसीह यीशु एक इलाही बादशाह है। बेशक इस वक्त वो सलीब पर हमारे साथ मसलूब किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो इलाही बादशाह है। और फिर उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो इस बात की दलालत करता है। तो वो जानता था कि मसीह खुदावन अपनी आमद सानी में बादलों तक आएगा, तो फिर अपने ईमानदार लोगों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। तू मुझे भी याद करना
वो मसीह के मौत होने का इकरार करता है कि जब मसीह खुदावंद आएगा तो वो खुदा का बेटा है, तो जो भी खुदावंद ने उसको इख्तियार दिया है तो उसके साथ साथ इख्तियार भी बहाल होगा। तो फिर वो इंतजार करता है कि खुदावंद तू तो अपनी बादशाही में जाएगा, जहाँ तू बादशाह की हैसियत से जाएगा, जहाँ तेरे पास फुल अथॉरिटी होगी, तो तू मुझे भी याद करना। तो उसके ये कुछ रवैये की बातें थी जो कि मसीह खुदावंद को बहुत अच्छी लगी। हालांकि खुदावंद जानता था कि दोनों डाकू इस वक्त जिंदगी पाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं और दोनों की ख्वाहिश भी है, लेकिन मसीह खुदावंद ने यहाँ फिर दिल की हालत पर गौर किया और एक डाकू जो कि उस पर ताना करता था उसको उसने माफ नहीं किया। बेशक वो कफारे के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर बात है कि दूसरा डाकू जिसका रवैया मुस्बत था और जिसने दिल से इस बात का इकरार किया कि ये खुदा का बेटा मसीह है, तो उसको उसने कहा कि तू आज ही, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मसीह खुदावंद ने अपने आदित होने की, क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद की जिंदगी में बैक वक्त एक कामिल बाप की, एक कामिल बेटे की और रूह कुदस की तीनों सिफात यकजा है। तो यहाँ पर खुदावंद ने अपनी उन तमाम सिफात को इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी वक्त मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब यहाँ पर मैं फिरदौस की कुछ वजाहत करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने इतना बड़ा वादा उससे किया था कि मैं तुझे फिरदौस में लेके जाऊँगा। तो फिरदौस हकीकत में है क्या? मसीह खुदावंद की मसरूफियत से पहले फिरदौस इसी ज़मीन के नीचे के इलाके को कहा जाता था, लेकिन जब मसीह खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए तो उन्होंने कैदी रूहों में मुनादी की। बाद में जब वो आसमान पर उठाने लिए तो अपने साथ कैदी रूहों को ले गए। उस वक्त से फिरदौस जो है ऊपर मुंतकिल हो गई। अब इस आसमान का सारा इलाका फिरदौस में नहीं आता, बल्कि आसमान का एक खास हिस्सा है जिसे हम फिरदौस के नाम से याद करते हैं। और वो इलाका कौन सा है? जहाँ पर नेक लोगों की रूहें जाती है, जहाँ पर मसीह खुदावंद का तख्त है जिस पर बैठकर उसने इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करना है, वो जगह फिरदौस में है। तो जिंदगी का दरख्त कहाँ है? जिंदगी का दरख्त जो है वो फिरदौस में है। इसका मतलब है कि फिरदौस जो है बहुत आराम की जगह है, खुशी की जगह है, जिंदगी की जगह है, जहाँ ना कोई गम है, ना किसी के आंसू बहेंगे, ना ही कोई रोना होगा, ना ही आहो नारा होगा। तो खुदावंद जो अपने दुखों का इकरार करके उनसे तौबा करते हैं, उनको अपने साथ हमेशा अब्दियत के आराम में फिरदौस में रखेगा। तो दूसरा कलमा है निजात का कलमा। अगर आज हम भी अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, इसी खुदावंद से ये इल्तिजा करेंगे कि खुदावंद तू हमारी पुरानी इंसानियत को मसीह यीशु के साथ मजबूत कर दे, हमें नई जिंदगी बख्श। तो खुदावंद का ये वादा आज तमाम ईमानदारों के साथ है जो इस करूए ज़मीन पर बसते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। आमीन। इसके बाद फिर हमने कलमे की हम बुलाएंगे। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। यीशु का लहू गुनाहों से शिफा शिफा मुकम्मल
اور اب باری ہے تیسرے کلمے کی، اور یہ کلمہ محبت کا کلمہ بن جاتا ہے۔ اور یہ محبت جو ہے یہ ماں اور بیٹے کے درمیان، اور اس میں ایک فکر مندی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بیٹا اپنی والدہ کے لیے کس قدر فکر مند ہے، اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم کئی بچوں کو ایسا دیکھتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے سے کہ ہم اپنے والدین سے محبت رکھیں، ان سے پیار کریں، ان کی فرمانبرداری کریں اور ان کے حکموں کو مانیں تاکہ ہمارا بھلا ہو اور ہماری عمر دراز ہو۔ سو آئیے تیسرا کلمہ ہم سیکھیں گے، اور یہ پیش کرنے آ رہی ہے بیٹی روت جیمس۔ مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ تیسرا کلمہ، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 26 تا 27 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ متی 27 باب 45 آیت بتاتی ہے کہ 12 بجے سے 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور ہم نے دوسرے کلمہ میں دیکھا کہ 11 بجے کے قریب خداوند یسوع مسیح کی گفتگو دونوں ڈاکوؤں سے ہوئی۔ لہٰذا اس کلمے کے وقت تاریکی چھا جانے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا جب یہ کلمہ ہمارے نجات دہندہ کے مبارک لبوں سے نکلا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح مریم بھی غم سے آشنا تھی۔ لوکا کی انجیل پہلے باب ہی سے اس کی زندگی میں غم کا آغاز ہوتا ہے۔ لوکا 1 باب 28 تا 29 میں یوں لکھا ہے، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ یہی پیغام مصائب اور غموں کا پیش خیمہ تھا۔ عجیب اور غیر معمولی طور پر مریم کا ماں بننا ایک انہونی سی بات تھی، اگرچہ وہ دنیا کے نجات دہندہ کی ماں بننے والی تھی، اور یہ بات اس کے لیے مقام فخر تھی۔ تو بھی وہ دل میں ڈرتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن پھر بھی وہ خدا کی مرضی کو قبول کرتی ہے۔ مریم کو اس وقت اتنا دکھ ہوا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں اور بچے کی پیدائش نزدیک ہے۔ اس کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس نے سنا ہوگا کہ ہیرودس اس کے بچے کو قتل کروانا چاہتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے لیے ملک چھوڑنا پڑا، اس کی جان کس قدر عذاب میں ہوگی۔ جب اس نے اپنے بیٹے پر ظلم ہوتے دیکھا ہوگا، اس کی دردناک حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیگنا اور معصوم بچے کو صلیب پر لٹکے دیکھا ہوگا، وہ صلیب کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ پہنچ نہیں سکتی، اس کا منہ سوکھ رہا ہے مگر وہ ترک نہیں کر سکتی۔ ان ہاتھوں اور پاؤں پر جو اب صلیب پر پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں اور پاؤں کو وہ ناز سے چوما کرتی تھی، لیکن آج یہ کیل صرف مسیح کے ہاتھوں میں نہیں لگے بلکہ یہ مریم کے دل کو بھی چھید رہی ہے۔ اس کے سر پر کانٹوں کے تاج کی چبھن اس کے دل کو زخمی کر رہی ہے۔ دشمن کی لان تان سن کر مریم کا دل پھٹا جا رہا ہے۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے جو پیغام فرشتے نے مریم کو دیا تھا وہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا
क्योंकि खुदा सच्चा और बरहक है, वो अपने वादों में भी सच्चा है। ये सलीब उस तख्तो-ताज और उस बुजुर्गी की तरफ पहला कदम था। पर जब हम इस तीसरे कलमे पर गौर करते हैं जो मसीह ने अपनी माँ के लिए कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये। इस कलमे से ये जाहिर होता है कि मसीह को अपनी माँ की फिक्र है। उसने सलीब पर इंतहाई दुख और अजियत की हालत में भी अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में इंतजाम किया और कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये। जहाँ मसीह सलीब पर जहान के गुनाहों का कफारा दे रहा है, वहाँ उसे अपनी माँ की भी फिक्र थी और ख्याल किया जाता है कि मरियम का खामन खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत शुरू होने से पहले ही इंतकाल कर चुका था और यीशु मसीह अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। और ये फिक्री बात है कि वो अपने आप को घर का जिम्मेदार समझता था और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी खिदमत के दौरान भी वो अपनी माँ की फिक्र करता होगा, लेकिन अब वो उसे छोड़ चला है। उसके पास दौलत नहीं जो उसके वास्ते छोड़ जाता, उसके पास उसकी सारी जायदाद वो कपड़े थे जो सलीब दिए जाने के वक्त पहने हुए था और वो भी सिपाहियों ने आपस में बांट दिए। इसलिए वो अपनी माँ को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था, तो उसके लिए उसने अपने शागिर्द का इंतखाब किया। मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना का इंतखाब इसलिए किया कि वो आखिरी वक्त तक उसके साथ था। बाकी सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, लेकिन यूहन्ना वो वाहिद शागिर्द था जो आखिरी वक्त तक मसीह के साथ था। और मसीह ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। और ये कलमा खानदानी फर्ज को पूरा करने के लिए बोला गया। ये कलमा बाप से सिफारिशी दुआ नहीं और ना किसी सवाल का जवाब है, बल्कि एक गमज़दा माँ का एहतमाम है, जिसमें माँ की जिम्मेदारी एक शागिर्द को सौंपी गई ताकि वो इसकी देखभाल करे। और कहा जाता है यहूदियों में रवायत थी कि माँ बाप की जिम्मेदारी घर के सबसे बड़े बेटे पर होती थी। चूँकि मसीह अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था और उसे मालूम था मेरे जाने का वक्त आन पहुँचा है, तो उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी। अगली आयत में लिखा है कि उसी वक्त मरियम को वहाँ से लेकर चला गया और वो इस कदर वफादार शागिर्द था कि उसने कोई बात नहीं की, बल्कि मरियम को अपने साथ ले गया। यीशु ने अपने दुनियावी फर्ज को बहुत अच्छे से निभाया और अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना को दी और कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए तो बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, वो अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं, लेकिन मसीह यीशु सलीब पर भी अपनी माँ के फर्ज को पूरा कर रहा है। आज का ये कलमा तमाम बच्चों और नौजवानों के लिए चैलेंज है जो रहमानियत के कमानों गरूर में अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। एक मशहूर मक़ोला है कि माँ के पाँव तले जन्नत है और बहुत से लोग इस जन्नत से महरूम हैं। खुदा हमें भी अपने वालिदैन की इज्जत करने और उनकी फरमाबरदारी करने और अपने फर्ज और अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम देने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। और अब हम चलते हैं चौथे कलमे की तरफ। और ये कलमा पहले मोहब्बत का कलमा था, अब जुदाई का कलमा है। और ये जुदाई बाप और बेटे के दरमियान पैदा होगी जब गुनाह बीच गया, जब गुनाह से लदा मसीह बाप ने देखा तो फिर यकीनन उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि लिखा है कि उसकी आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और उसी वक्त यीशु पुकार उठा, एली एली लमा शफ़क़तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये वाला आपको 27 बाप उसकी 46 आयत में, जो कि
मौतरा की क्वायर ने ये खूबसूरत गीत गाया और अब जो कलमा सुनाने के लिए जो बेटी आ रही है वो भी मौतरा से पहली दफ़ा मैंने उसको दावत दी है और उसकी ख्वाहिश थी कि वो कलमा पेश करे और इसका नाम है किरण खावर। तो किरण खावर आएगी और अपना कलमा पेश और बेटे दोनों में आ गए थे। मत्ती 27 बाब उसकी 45 और 46 आयत में हम यूँ देखते हैं, लिखा है कि और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि दोपहर का ये तीसरा पहर जब सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा होता है, आज उसने क्यों अपना मुंह छुपा लिया। आज क्यों इस पहर के करीब अंधेरा छाया हुआ है। हर तरफ बड़े दुख, मातम और गम का सा माहौल है। सूरज कैसे अपना मुंह दिखाए, कैसे वो सामने हो जबकि उसके बनाने वाला नहायत ही दुख में है, दर्द में है। इतना दर्द कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसका पूरा जिस्म लहूलुहान है। लेकिन फिर भी वो कुछ घंटों से खामोश है। लेकिन देखते हैं कि जब उसके अंदर कुछ टूटता है तो वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंसानी तौर पर हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर कुछ टूटता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और हम कहते हैं कि किसी को पता भी ना चले। लेकिन हमारा खुदा जो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, जो रास्तबाज था और हमारे लिए नाराज ठहरा, उसने बहुत से गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए कलवरी की तरफ चला गया। सलीब उठाई, कोड़े खाए, पसली में नेज़ा खाया, हाथों पैरों की कील रुकवाए, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे बाप ने मुझसे मुंह फेर लिया है, मेरे बाप ने मुझसे नजरें चुरा ली हैं, तो वो बहुत रोया और चिल्लाया और बड़ी आवाज से कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि बाप ने बेटे को क्यों छोड़ा। हम देखते हैं अदन में जब खुदा बाप ने बड़े प्यार से आदम और हवा को अपने हाथों से सैंचा, तो उसने बड़े प्यार से एक खूबसूरत सी जगह बनाकर आदम और हवा के लिए रखी। लेकिन इब्लीस गुनाह जो आदम और हवा और खुदा बाप के दरमियान आ गया था, तो उसने आदम और बाप के दरमियान जुदाई डाल दी। और यही इब्लीस था जो सलीब पर यीशु मसीह और बाप के दरमियान जुदाई लेकर फिर से आया। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर बाप और हमारे दरमियान जो जुदाई की दीवार थी, जो अदन से लेकर चल रही थी, उसको सलीब पर जान देकर डाल दिया और कहा, और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया और वो हमारा जो जुदाई बाप के साथ थी, हमारा मेल दोबारा से उसने बाप के साथ करा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारी जिंदगियों में बहुत से गुनाह हैं। हम उसकी सलीब को याद नहीं रखते, हम उसकी दर्द को याद नहीं रखते, हम उसके चिल्लाने को याद नहीं रखते, उसके कांटों के ताज को याद नहीं रखते। और फिर भी आज भी हम देखें तो हम उन्हीं गुनाहों में दसे हुए हैं। खुदारा मेरी आप सबों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जिंदगियों को खुदा की सलीब को सामने रखकर गुजारें। जब हम उसकी सलीब को सामने रखकर गुजारेंगे तो हमें याद रहेगा, उसके कलाम को हम अपनी जिंदगियों में रखेंगे तो हमें याद रहेगा
कभी कांटों ने छेदा है, कभी कांटों ने छेदा है, कभी कीलों ने छेदा है, कभी कांटों ने छेदा है, कभी कीलों ने छेदा है, मेरे बेऐब यीशु को मेरे ऐबों ने छेदा, मेरे बेऐब यीशु को मेरे ऐबों ने छेदा। आइए चलते हैं 5वें कलमे की तरफ। और ये इस गर्व का इजहार है कि जिस्म से बहुत हद तक खून बह चुका है, धूप है, गर्मी है। आज तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, पिछले दिनों इतनी गर्मी रही कि बार बार प्यास लगती है इंसान। आम हालत में इंसान इतनी प्यास महसूस करता है कि 2-3 गिलास पी जाता है। और वहां तो यीशु सलीब पर है, धूप है, कांटों का ताज है, हाथ और पांव में कील है, सांस लेने में दुश्वारी है, और प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि यीशु पुकार उठा, मैं प्यासा। ये 5वां कलमा है यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत। जिन्होंने खुदावंद सलीबी कलमात को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया, इन सब के लिए तेरी कसरत की बरकत को खुदावंद मानता हूँ और मिन्नत है खुदावंद खुदा के तेरे बच्चे रोज रोज तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे कलाम से आशना रहे, तुझ में कायम रहे, ईमान में कायम रहे, क्योंकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हमेशा फरमाबरदारी की रूह दे, ताकि जो कुर्बानी तूने मेरे लिए हम सब के लिए दी है, उस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल करने वाले और तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करने वाले बड़ी बरकत शुक्र कबूल कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम हदिये का गीत गाएंगे। चलिए